নমস্কাৰ। সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ ইনকাম ডিটাৰমিনেশ্যন চেপ্টাৰটোৰ ওকে মই স্পেশাল এলিমেন্ট এটা লৈছো এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ দিস ইজ consumption means consumption expenditure ko para consumption function okay last class ami what is consumption function tar duta attributes apc mpc bila kotha koi hoisilo clear so aji specially moi duta topic consumption or logot discussion koribo goi aso one is types of consumption function another is relationship between investment multiplier and mpc okay ami ebilak discussion korisu but joa class khinit আজি আমি হিটু ফাইনাল রিভিজন আকো এবাৰ কৰি দিছো ক্লাস 12 ফৰ এক্সামৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে আমি জানো কনজাম্পশন ফাংশন ইজ হোৱাট কনজাম্পশন ফাংশন মিন্স দেয়ার ইজ এ ফাংশনাল রিলেশনশিপ বিটুইন কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনকাম ওকে যেটো আমি অলরেডি জানো কি কনজাম্পশন ইজ এ ফাংশন অফ হোৱাট income and relation between these two is what positive means when income increases then consumption also increases when income decreases consumption also decreases okay so ekhini kotha ami jano according to the psychological law of consumption hekhini kotha ami discussion korisu clear ite question hol je consumption function or types buli kole ami keita bhagot bhag koribo paru clear so tete hole bola ami ekhini arambho koru is types of consumption function okay so consumption function or types buli kole khoday janiba consumption function or ami tinta bhagot bhag koribo paru consumption function to ami tinta bhagot bhag koribo paru this is what consumption function or types buli kole ami tinta bhagot bhag koribo paru number 1 okay types buli kole number 1 short run and okay and long run consumption function clear so first one is short run consumption and long run consumption function clear the short run consumption function means what and long run consumption function means what clear symbolically jodi tumi swa short run consumption function to ami eneka likho means consumption means moi jodi ko short run consumption boli koar loge loge moi to musi diso long run to musi diu okay so short run consumption function boli kole short run okay short run consumption function clear short run consumption function boli kole ami khoddai jano consumption function to ami eneka likhim c bar plus by clear khoddai monot rakhiba short run consumption function of mathematically intercept or slope duta bostu thakibo clear that means what short run consumption function of intercept okay intercept eta thakibo and short run consumption function or intercept or naam autonomous okay autonomous consumption or slope jitu ase slope nothing but consumption function or slope nothing but what mpc clear hoday duta bostu thakibo because why short run consumption function okay मैं हिंदी तो कह दिसो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में ऑलवेज रिमेंबर एक चीज को ध्यान में रखो वो है जब तुम्हारा इनकम जीरो होगा क्लियर तब कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता है क्लियर मतलब इनकम जीरो कंजम्पशन नॉट इक्वल जीरो तो अगर इनकम जीरो में कंजम्पशन नॉट इक्वल जीरो होता है इसका मतलब कंजम्पशन कर्व में एक इंटरसेप्ट आ जाता है क्लियर एंड दैट इंटरसेप्ट इज नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन फॉर्म अगर देखा जाए तो ये होगा क्लियर और ये अगर होगा इसका मतलब ये हो गया कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट एबोव ओरिजिन मतलब शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट एबोव ओरिजिन मतलब ओरिजिन से कभी नहीं स्टार्ट होगा इसका एक इंटरसेप्ट रहेगा ही दैट इंटरसेप्ट इज सेड टू बी व्हाट ऑटोनोमस कंजम्पशन क्लियर मतलब शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में अगर देखा जाए तो कंजम्पशन का इधर हो गया इनकम इधर हो गया कंजम्पशन तो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन का ऑलवेज स्टार्ट एबोव ओरिजिन मतलब यहाँ से शुरू होगा क्लियर इसका मतलब हो गया इतना हो गया व्हाट सी बार सो दैट सी बार इज नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन क्लियर और
इस कर्व का जो पॉइंट का चेंज है ना, पॉइंट का चेंज का मतलब हो गया दिस एंड दिस टू दिस नथिंग बट चेंज डेल्टा वाई एंड दिस चेंज नथिंग बट डेल्टा सी, मतलब ये हो गया डेल्टा सी कॉन्सेप्ट, ये हो गया डेल्टा वाई कॉन्सेप्ट, मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट नथिंग बट डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एंड डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई नथिंग बट बी एंड दैट बी नथिंग बट MPC। मतलब शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन में दो चीज़ तुमको आएगा ही, एक होगा कंजम्पशन कब एबोव ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जहाँ जीरो इनकम में कंजम्पशन मिनिमम एक ठो रहेगा एंड दैट मिनिमम कंजम्पशन इज सेड टू बी व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर। और जो कर्व का पॉइंट का चेंज है ना, कोई कर्व का अगर पॉइंट का चेंज बोलो उसको स्लोप बोलता है, और कंजम्पशन कर्व का पॉइंट का चेंज मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई एंड दैट मीन्स व्हाट, MPC। क्लियर। तो ये इक्वेशन फॉर्म अगर तुम लिखोगे ना, दिस इज हो गया क्या, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन। क्लियर। मतलब शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन फॉर्म ऑलवेज ये होगा, इंटरसेप्ट रहेगा, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, और स्लोप रहेगा ही। क्लियर। तो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए देगा तो ये लिखो। क्लियर। और उसका कर्व ऑलवेज ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। ये दो चीज़ ध्यान में रखो, एक हो गया कंजम्पशन इक्वेशन जो होगा शॉर्ट रन का, वो ऑलवेज होगा C इक्वल C बार प्लस बी वाई, मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, दिस C बार नथिंग बट ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट B नथिंग बट MPC। क्लियर। और ऑलवेज स्टार्ट एबोव ओरिजिन। क्लियर। सो फाइनली दिस इज हो गया शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन फॉर्म। क्लियर। दिस इज नेक्स्ट होगा तुम्हारा लॉन्ग रन कंजम्पशन। लॉन्ग रन कंजम्पशन अगर फंक्शन दिखा जाए ना, तो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में एक चीज़ ध्यान रखो, मतलब ए में सेकेंड पार्ट था लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर। और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन फॉर्म होगा बी वाई। क्लियर। देखो इधर मैंने इंटरसेप्ट नहीं लिखा, मतलब C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। ओके, ये C बार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं होगा। मतलब लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में इंटरसेप्ट नहीं होता है, ओनली स्लोप आएगा। क्लियर। मतलब इंटरसेप्ट नहीं होगा। वाई, इसका मतलब ये हो गया इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन इस जगह पर, मतलब लॉन्ग रन में नहीं होगा। क्लियर। अगर नहीं होगा तो ऑलवेज लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। मतलब लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन कर्व तुम जब ड्रॉ करोगे ना, तो कंजम्पशन कर्व ओरिजिन से ड्रॉ करो। क्लियर। व्हाई, बिकॉज इन दैट सिचुएशन इनकम जीरो तो कंजम्पशन जीरो, मतलब लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट में देखा जाए इनकम अगर जीरो होगा तो कंजम्पशन भी जीरो होगा। क्लियर। अगर इनकम जीरो तो कंजम्पशन जीरो, तो कंजम्पशन का ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर। इसलिए शायद इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। क्लियर। बट शॉर्ट रन में क्या था, शॉर्ट रन में इनकम तुम्हारा जीरो था, कंजम्पशन नॉट इक्वल जीरो था, इसलिए तो इसके C बार कॉन्सेप्ट आ गया था। क्लियर। ये हो गया शॉर्ट रन वाला कॉन्सेप्ट, ये हो गया लॉन्ग रन वाला कॉन्सेप्ट। तो फाइनली शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में देखा जाए तो तुम्हारा दो चीज़ आ गया। क्लियर। मतलब शॉर्ट रन, मैं इसे लिख देता हूँ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्लियर। शॉर्ट रन लॉन्ग रन में देखा जाए, शॉर्ट रन का इक्वेशन फॉर्म होगा C इज इक्वल C बार प्लस बी वाई, और लॉन्ग रन में होगा C इज इक्वल बी वाई। क्लियर हो गया। इसमें इंटरसेप्ट भी है, स्लोप भी है, इसमें ओनली स्लोप है, मतलब MPC है। इसमें अगर तुम कर्व ड्रॉ करोगे तो कर्व एबोव ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर। एबोव ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब दिस इज इंटरसेप्ट। ओके। बट लॉन्ग रन में अगर तुम कंजम्पशन का ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर। मतलब this is the equation form of short run consumption function, this is the equation form of long run consumption function. Clear. And short run consumption can always start above origin, and long run consumption function always start from origin. Clear. दो डिफरेंस बोल दिया। क्लियर। गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था तुम्हारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन।
linear consumption function and non-linear consumption function. Linear and non-linear, okay, non-linear consumption function. क्लियर? अभी ये जो लीनियर एंड नॉन लीनियर का बात आ गया ना, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एक चीज़ ध्यान रखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एमपीसी व्हाट, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर? एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज़ आएगा. बट नॉन लीनियर में एमपीसी डेफिनेटली क्या होगा, एमपीसी फॉल्स. क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखो. लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट नॉन लीनियर में एमपीसी ऑलवेज फॉल्स. क्लियर? अगर ये बात है तो इसका मतलब ये हो गया क्या, अगर टेबुलेटेड फॉर्म में तुम देखो छोटा करके, तो मैं दो भाग करके दे रहा हूँ. लीनियर कंजम्पशन फंक्शन ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा नॉन लीनियर. ओके, नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन. क्लियर हो गया. अभी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में एक बात मैंने लिखा, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इधर मैंने लिखा एमपीसी व्हाट, फॉल्स. क्लियर? तो इधर एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, उधर एमपीसी रिमेन्स फॉल्स. तो अगर ये चीज़ होगा तो इसका टेबुलेटेड फॉर्म अगर बनाओगे ना, तो टेबुलेटेड फॉर्म में ये चीज़ आएगा, सी इधर तुम एमपीसी लिख दो. क्लियर? ये हो गया. और इधर भी तुम टेबुलेटेड फॉर्म में देखो तो क्या होगा, वाई सी एमपीसी. क्लियर हो गया. अगर देखा जाए तो इधर मान लो इनकम तुम्हारा 100, कंजम्पशन हो गया 20. क्लियर? इनकम 200, कंजम्पशन तुमने कर लिया मान लो 60. इनकम तुम्हारा है 300, कंजम्पशन तुमने कर लिया 80. क्लियर? बट इधर तुम देखो इनकम अगर 100, कंजम्पशन मान लो कर लिया 20. इनकम 200, कंजम्पशन कर लिया 40. ओके, कंजम्पशन कितना 40. इनकम तुम्हारा हो गया 300, कंजम्पशन तुमने कर लिया सपोज कितना 50. क्लियर हो गया. लेकिन इधर एक चीज़ देखो, ये 20, 60, 80 मैंने लिखा एमपीसी लीनियर में. तो इधर अगर तुम एमपीसी निकालो ना, तो एमपीसी का पहला वाला चेंज नहीं है तो डैश होगा. दूसरा वाला ये एमपीसी होता है डेल्टा सी, मतलब इधर चेंज कितना देखो, चेंज कितना 40 चेंज, और इनकम का चेंज कितना 100, इधर 100 होगा. ओके, तो इसका चेंज आ जाएगा तुम्हारा 0.4. नेक्स्ट टाइम ये अगर तुम्हारा इनकम का चेंज 300 to 200 हो गया 100 चेंज. क्लियर? और कंजम्पशन का चेंज हो गया 60 to 100 मतलब 40 चेंज. मतलब इधर हो गया 20 to 60 मतलब 40 चेंज, 60 to 100 40 चेंज, 20 to 60 हो गया 40 चेंज, और 60 to तुम्हारा 100 हो गया 40 चेंज, है ना. तो 60 to 20 माइनस करो 40 निकलेगा, 100 से 60 माइनस करो 40 निकलेगा. और इनकम का चेंज देखो 200 माइनस 100 100 चेंज, 300 माइनस 200 100 चेंज. तो फाइनली इधर निकल गया 0.4. क्लियर हुआ. नेक्स्ट इधर अगर तुम देखो पहला वाला चेंज नहीं है डैश, इधर तुम्हारा चेंज कितना 20, इसका चेंज कितना 100, तो हो गया 0.2. नेक्स्ट वाला तुम चेंज देखो 50 40 का चेंज हो गया 10, और ये 300 200 का चेंज हो गया 100, तो हो गया 0.1. क्लियर हुआ. तो एक चीज़ ध्यान में रखो, इनकम बढ़ा कंजम्पशन भी बढ़ा, इनकम बढ़ा कंजम्पशन भी बढ़ा. क्लियर? बट इन दैट सिचुएशन व्हाट, इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट द सेम प्रोपोर्शन, मतलब सेम रेट में बढ़ गया. तो इन दैट सिचुएशन एमपीसी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट. और एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, इधर भी इनकम बढ़ा कंजम्पशन बढ़ा, लेकिन एमपीसी ग्रेजुअली व्हाट, फॉल्स. मीन्स इन दैट सिचुएशन एमपीसी व्हाट, फॉल्स, बट इन दैट सिचुएशन एमपीसी रिमेन्स व्हाट,
कांस्टेंट। तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में ऑलवेज एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट होता है और नॉन लीनियर में एमपीसी ऑलवेज फॉल्स होता है। क्लियर? तो ये चीज़ अगर होगा तो इसका कर्व शेप अगर बनाओगे ना तो कर्व शेप में क्या होगा, ये चीज़ होगा। कर्व बनाओगे तो थर्ड पॉइंट, ओके, एक टेबुलेटेड फॉर्म दिखा दिया मैंने, टेबुलेटेड वाला इधर लिख देता हूँ। फिर टेबुलेटेड फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये वाई सी एम पी सी, ओके, तो वाई सी एम पी सी अगर करोगे तो ये निकलेगा 100, 20, 200 हो गया तुम्हारा, सपोज 40, ये 300, इधर 50, तो ये डैश होगा, ये चेंज 20, 20 बाई 100 0.2, 20 बाई 100 0.2, 10 बाई 100 0.1। क्लियर? इधर तुम्हारा हो जाएगा इनकम सी एम पी सी। क्लियर? ये हो गया। तो इधर तुम देखो 100, ये चेंज तुम 40 पकड़ लो, ये 200, इसको तुम 80 पकड़ लो, ये 300, इसको तुम 140 चेंज ना 120 पकड़ लो, तो इसका डैश आ जाएगा। इसका चेंज कितना देखो, 80 40 का चेंज 40 बाई 100 0.4, इसका तुम 120 एंड 80 का चेंज देखो कितना 40, और इधर 100 चेंज मतलब 0.4। क्लियर? ये हो गया। मीन्स इन दैट सिचुएशन एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट और हियर एमपीसी व्हाट, फॉल्स। क्लियर? एमपीसी फॉल्स। क्लियर हुआ? अगर ये चीज़ है तो इसमें ऑलवेज ध्यान देना, एमपीसी अगर रिमेन्स कांस्टेंट होगा वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में होगा, और एमपीसी अगर फॉल्स होगा वो नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में होगा। क्लियर? तो ये चीज़ अगर होगा तो ऑलवेज ध्यान दो, इधर अगर तुम कर्व बनाओगे ना, कर्व बनाओगे, इधर y हो गया इनकम, इधर कंजम्पशन हो गया, तो ऑलवेज ध्यान देना इसमें कर्व शेप होगा। क्लियर? कर्व शेप होगा। नो, कर्व शेप होगा मतलब सी सी डैश। इसका मतलब हो गया जब इनकम था 100 तब तुम्हारा कंजम्पशन था 20, इनकम जब 200 तब कंजम्पशन था तुम्हारा 40, इनकम जब हो गया 300 तब कंजम्पशन हो गया 50। ये जो गैप है ना, वो गैप देखो घट गया है कि नहीं, मतलब ये गैप से ये गैप कम है। तो ऑलवेज रिमेंबर कंजम्पशन का इधर होगा कर्व शेप। मतलब नॉन लीनियर में अगर नॉन लीनियर में कंजम्पशन जो कर्व तुमने बनाया ना, कंजम्पशन कर्व वो फ्री हैंड कर्व होगा। क्या कर्व होगा? फ्री हैंड कर्व। ओके, मतलब फ्री हैंड कर्व होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओके, मतलब नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में तुम स्केल को यूज मत करो। क्लियर? मतलब फ्री हैंड कर्व बनाओ। क्लियर? बिकॉज व्हाई एमपीसी रिमेन्स फॉल्स। क्लियर? बट इन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन जब होगा ना तो एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट हुआ, और एमपीसी अगर रिमेन्स कांस्टेंट हुआ तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब स्केल से बनाओ। क्लियर? मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। क्लियर? अगर स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, मैं थर्ड पॉइंट इधर दिखा देता हूँ। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट में जब तुम कर्व ड्रॉ करोगे ना तो इधर हो गया इनकम, इधर हो गया कंजम्पशन। क्लियर? तो तुम कंजम्पशन कर्व को स्ट्रेट लाइन बनाओ। इसका मतलब ये हो गया इनकम जब 100 था तो कंजम्पशन मान लो 40, इनकम जब 200 था तब कंजम्पशन मान लो कितना 80। क्लियर? ये फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इनकम जब तुम्हारा 300 था तब कंजम्पशन हो गया कितना 120। क्लियर? मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, जस्ट तुमको दिखाया, कंजम्पशन का बना दिया। ये जो गैप है ना डेल्टा सीगा, ये जो गैप है ना डेल्टा सीगा, ये गैप तुम इक्वल रखो। ये गैप अगर तुम इक्वल रखोगे ना तो वो हो जाएगा क्या, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, और तब ये लीनियर हो जाएगा, तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्लियर? और नॉन लीनियर में ऑलवेज कर्व शेप होगा, और इधर डेल्टा सी का गैप घट जाएगा। क्लियर? हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो होगा थर्ड, स्टैटिक एंड डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? स्टैटिक एंड व्हाट, डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन, जो 3 नंबर वाला था। सी, स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्टैटिक एंड डायनेमिक कंजम्पशन
फंक्शन। क्लियर? तो स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन में लिख लेता हूँ, स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन, और इधर तुम्हारा हो गया डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? अगर ये चीज़ देखो, ऑलवेज ध्यान देना, स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन में ऑलवेज, क्लियर, कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स, एक चीज़ खाली, कंजम्पशन डिपेंड्स ओनली इनकम, क्लियर, मतलब अदर फैक्टर्स, क्लियर, अदर फैक्टर्स remains unaltered, remain unchanged लिख देता हूँ, ओके, remain unchanged। क्लियर? मतलब इधर कंजम्पशन डिपेंड्स not only income but also what? Other factors मतलब क्या? ठीक है, अभी इधर अदर फैक्टर्स हो गया तुम्हारा टेस्ट, फैशंस, प्राइस लेवल्स, ओके, कस्टम्स, ये सब, ओके, एज भी डाल सकते हो। इधर भी हो गया टेस्ट, फैशंस हो गया, प्राइस लेवल, कस्टम्स, क्लियर, ये सब। क्लियर? मतलब स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन जब बोलोगे ना, तब तुम्हारा कंजम्पशन ओनली डिपेंड्स ऑन इनकम, मतलब कंजम्पशन में ओनली इनकम ने तुमको इफेक्ट डाला, मतलब इन दैट सिचुएशन ओनली योर कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, इन दैट सिचुएशन अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब हो गया टेस्ट, फैशंस, कस्टम्स, प्राइस लेवल, वो सब का इफेक्ट कंजम्पशन में नहीं आएगा, वो सबको मैंने अदर फैक्टर को रिमेन्स कांस्टेंट डाल दिया, मतलब अदर फैक्टर को एक्साइट करके just we here try to establish the relationship income and consumption। clear? मतलब इधर other factor does not affect your consumption, clear, but in that situation dynamic consumption function में consumption depends not on income, मतलब तुम्हारा consumption में income का effect आएगा, ये बात नहीं, income के साथ साथ टेस्ट भी effect गिराएगा, फैशन भी effect गिराएगा, प्राइस लेवल भी effect गिराएगा, कस्टम्स भी effect गिराएगा, मतलब ये सब फैक्टर का इफेक्ट आ जाएगा कंजम्पशन में। क्लियर? मतलब इनकम नॉट ओनली द फैक्टर इन दैट सिचुएशन, मतलब डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन में इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स का भी इफेक्ट आएगा कंजम्पशन में। क्लियर? लेकिन स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन ओनली डिपेंड्स ऑन इनकम, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? मतलब अदर फैक्टर का इफेक्ट कंजम्पशन में नहीं आएगा, लेकिन डायनेमिक में इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर का इफेक्ट भी आएगा, कहाँ? कंजम्पशन पर, मतलब तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो गया? तो ओवरऑल मैंने 3 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन मैंने डिस्कशन किया, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, नॉन लीनियर consumption function, and finally static consumption function and dynamic consumption function। clear? good। ये हो गया types of consumption function, मतलब consumption function का देखा जाए 3 टाइप्स मैंने डिस्कशन किया। एक हो गया क्या? शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, नंबर 2 लीनियर नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, नंबर लास्ट वन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? गुड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का था एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हम लोग का सेकेंड टॉपिक था, मतलब रिलेशनशिप between what?
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब के एंड व्हाट एमपीसी क्लियर ये रिलेशन ता माने विनियोगर गुणक और प्रांतिक उपभोग प्रवणतार मजत संपर्क क्लियर सो ये रिलेशन अगर तुमको करना है ना तो तुमको एक चीज जानना जरूरी है वी ऑलरेडी नो के इज इक्वल डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई मतलब रेट ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओके मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट का चेंज के हिसाब से अगर इनकम का कितना चेंज हो रहा है दिस इज सेड टू बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ओके मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्लियर गुड तो ये सब तो मैंने दिखाया तो इसका रिलेशन किसके साथ के एन एमपीसी के साथ रिलेशन क्लियर तो ये रिलेशन अगर एस्टैब्लिश करना है ना तो तुमको ये चीज़ लिखना है व्हाट सोल्यूशन अगर देखा जाए सोल्यूशन में वी नो हम लोग को पता है कि इन इक्विलिब्रियम इनकम डिटर्मिनेशन में हम लोग को पता है व्हाट y इज इक्वल टू c प्लस आई बिकॉज वी ऑलरेडी नो y इज इक्वल टू s क्लियर एंड c प्लस आई मतलब ad मतलब s इक्वल ad clear means in that situation s is equal ad and s मतलब y और ad मतलब c plus i so in equilibrium y equal c plus i clear हुआ तो अगर ये हो गया इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 डाल दो तुम इसके बाद तुम अगर इनकम का चेंज करोगे तो कंजम्पशन का भी चेंज होगा इन्वेस्टमेंट का भी चेंज होगा ओके सो नाउ डिवाइडिंग व्हाट नाउ मल्टीप्लाई लिख दो नाउ मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाइंग व्हाट डेल्टा इन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट हम लोग को मिलेगा क्या डेल्टा y इज इक्वल डेल्टा c प्लस डेल्टा i ये मिल जाएगा तो इक्वेशन तुम 2 डाल दो क्लियर हुआ मतलब इनकम का चेंज होगा तो कंजम्पशन का भी चेंज होगा इन्वेस्टमेंट का भी चेंज होगा क्लियर उसके बाद ये 2 इक्वेशन जो मिला ना इक्वेशन 2 डिवाइडेड ओके बाय डेल्टा y मतलब डेल्टा y से अगर बोथ साइड तुम डिवाइड कर लो तो मिलेगा क्या डेल्टा y बाय डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c बाय डेल्टा i बाय डेल्टा y ये मिलेगा क्लियर तो ये अगर मिलेगा तो उसके बाद मैं ऊपर लिख देता हूँ क्लियर इसके बाद तुमको मिलेगा क्या इतना मैं ओमिट कर दिया तो इसके बाद यहाँ से अगर तुम जाओ तो डेल्टा y बाय डेल्टा y है ना ये तो इसका मतलब हो गया क्या 1 ये कर दो तो मिल गया तुमको 1 क्लियर तो 1 हो गया इज इक्वल इधर क्या है डेल्टा c बाय डेल्टा y ये तुम सेपरेट कर लो इसको भी तुम सेपरेट कर दो डेल्टा i बाय डेल्टा y क्लियर हुआ उसके बाद इम्प्लाइज डाल दो 1 इज इक्वल ये डेल्टा c बाई डेल्टा y मतलब तुमको पता है एमपीसी प्लस डेल्टा i बाई डेल्टा y डाल दो नेक्स्ट लाइन में 1 लिख दो माइनस इसको एमपीसी को इधर ले आओ एमपीसी इधर आ गया उधर रह गया तुम्हारा क्या डेल्टा i बाई डेल्टा y क्लियर हुआ तो पहले मैंने क्या किया देखो y इज इक्वल c प्लस आई लिख दिया इन इक्विलिब्रियम उसके बाद डेल्टा से मैंने 2 कर दिया तो दोनों साइड को डेल्टा से इंटू कर दिया डेल्टा y हो गया डेल्टा c हो गया डेल्टा i हो गया उसके बाद ये इक्वेशन को डेल्टा y से डिवाइड कर दिया बोथ साइड डेल्टा y बाई डेल्टा y डेल्टा c प्लस डेल्टा i बाई डेल्टा y उसके बाद मैंने सेपरेट कर दिया डेल्टा y बाई डेल्टा y कट गया 1 हो गया डेल्टा c बाई डेल्टा y डेल्टा i बाई डेल्टा y डेल्टा c बाई डेल्टा y वी ऑलरेडी नो व्हाट एमपीसी मतलब डेल्टा c बाई डेल्टा y नथिंग बट व्हाट एमपीसी क्लियर उसके बाद अगर देखा जाए ये वाला इक्वेशन को अगर तुम इन्वर्स कर दो इन्वर्स करने से ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा
ये भी इन्वर्स हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये हो गया 1/1 माइनस MPC, इधर हो गया ये K। तो फाइनली तुमको मिल गया K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। सो ये जो मिला ना तुमको K इज इक्वल 1/1 माइनस MPC, so this equation represent the relationship between investment multiplier K and marginal propensity to consume। Clear? तो ये रिलेशन में ऑलवेज ध्यान देना K and MPC का जो रिलेशन है ना वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इफ मैं लिख देता हूँ, इफ MPC increases then definitely K also increases। If MPC falls then K also falls। मतलब MPC के साथ K का जो रिलेशन है ना वो पॉजिटिव, बिकॉज K इज इक्वल द रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस MPC। मतलब MPC के साथ K का रिलेशन ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका मीनिंग ये हुआ, इकोनॉमी का अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू भी बढ़ेगा। पकड़ लो, अगर मान लो MPC का वैल्यू 0.2, क्लियर? मान लो इफ मान लो 0.2, तो K का वैल्यू छोटा निकलेगा, लेकिन MPC का वैल्यू मान लो 0.8 बड़ा ले लिया तो K का वैल्यू बड़ा निकलेगा। इसका मतलब हो गया MPC अगर 20% से 80% होगा तो MPC का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो रिलेशन पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया इन एन इकोनॉमी इफ MPC इंक्रीजेज देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल्सो इंक्रीजेज। मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ MPC इंक्रीजेज देन डेफिनेटली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब MPC के साथ K का रिलेशन पॉजिटिव। क्लियर? एंड फाइनली दिस इक्वेशन shows the relationship between what? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC। इसके साथ साथ में एक चीज ये हो गया। क्लियर? सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद अगर तुम देखो ये जो इक्वेशन मैंने लिया ना, फाइनल जो रिलेशन में आया 1 माइनस MPC, इससे तुम और एक चीज निकाल सकते हो K इज इक्वल 1/MPS, क्योंकि हम लोग को पता है व्हाट MPC प्लस MPS इज इक्वल 1। तो इसका मतलब ये हो गया MPS इज इक्वल टू 1 था, इसको इधर ले आओ MPC, ठीक है ना? तो इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो, तो दिस नथिंग बट सॉरी दिस इज MPC होगा है ना। सो 1 माइनस MPC अगर है तो 1 से MPC अगर चला जाएगा, 1 से MPC चला जाएगा तो MPS निकलेगा। क्लियर हुआ? तो इधर K इज इक्वल 1/MPS हो गया एक ठो, और एक ठो हो गया K इज इक्वल 1/1 माइनस MPC। तो इधर रिलेशन पॉजिटिव, मतलब MPC और K का रिलेशन पॉजिटिव, बट इन दैट सिचुएशन MPS एंड K का रिलेशन ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। इसका मतलब इकोनॉमी का MPS अगर बढ़ेगा तो K का वैल्यू घटेगा, अगर MPS बढ़ेगा MPS अगर घटेगा तो K का वैल्यू बढ़ेगा। इफ इन एन इकोनॉमी MPS increases, value of investment multiplier decreases. If MPS falls, then definitely value of investment multiplier also increases. क्लियर? मतलब K के साथ MPC का रिलेशन पॉजिटिव, बट K के साथ MPS का रिलेशन डेफिनेटली नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल ये जो रिलेशन आया ना, इस रिलेशन से तुमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का तुमको 3 फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? कितना? 3 फॉर्मूला। एक तो पहला वाला फॉर्मूला हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। क्लियर? ये तो पहले वाला डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला तुमको मिल गया 1/1 माइनस MPC, ये रिलेशन से आया K एंड MPC का। फिर इस रिलेशन से और एक तो फॉर्मूला आया 1/MPS। क्लियर? तो इधर इन्वेस्टमेंट का चेंज के हिसाब से इनकम का जो चेंज होगा, दिस इज सेड टू बी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बट ये रिलेशन में MPC एंड K का रिलेशन डेफिनेटली पॉजिटिव, बट इधर MPS एंड K का रिलेशन डेफिनेटली व्हाट? नेगेटिव। ओके, तो फाइनली मैंने आज क्या क्या चीज़ डिस्कशन किया? कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड 2 चीज़ डिस्कशन हो गया हम लोग का।
क्लियर। वन स्पेशली हो गया टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, जहां मैंने डिस्कशन किया शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सेकंड मैंने लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, एंड फाइनली स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन एंड डायनेमिक कंजम्पशन फंक्शन मैंने डिस्कशन किया। क्लियर। और दूसरा जो टॉपिक था वो था रिवीजन में रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। वो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए तुमको इक्विलिब्रियम का कंडीशन चाहिए y = c+i, उसको पकड़ के ये सॉल्यूशन तुम लाओ, ये वाला। क्लियर। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ओके, नेक्स्ट क्लास देखते हैं कि एक टॉपिक लेता है क्लास 12 के लिए। ओके, तब तक क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।